Hello dear students, today we will read our next chapter, that is surface chemistry. Take out your copy. Surface chemistry. Okay, so we read our chapter solution, where we got to know about the concentration terms. Okay, how we will calculate the concentration of a solute or solution, what are the percentage. Thereafter we went towards the electrochemistry parts. Electrochemistry, there we got to know the relation between the electrons that are flowing in a chemical reaction, particular chemical reactions, where we know about the galvanic cell and fuel cell, battery, anode, cathode, oxidation, reduction, all about this. Thereafter we went towards the chemical kinetics, our previous chapter, chemical kinetics, where we read about the kinetics of any reaction, that the factors, what are the depends upon the kinetics. Again, we read the order of reaction, molecularity, okay, and what are the factors affecting the chemical reaction. Okay. Today we will start our surface chemistry. This is one important chapter among these in your physical point of view. Surface chemistry is relating to the surface. Okay, it is relating to the surface. So surface, as it is mean that surface of any chemical reaction. Okay, कोई भी chemical reaction का surface relating to पढ़ेंगे हम इधर. तो क्या है सरफेस? क्या है सरफेस? मीन्स ये एक सरफेस है. व्हाइट बोर्ड इज आल्सो ए सरफेस. ओके, चौक का ऊपर वाला लेयर होगा वो सरफेस है. ये भी हम बोलेंगे, इसका भी ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको हम कहेंगे सरफेस. तो सरफेस में जो कंपोजिशन होता है, जो रिएक्शन होता है, कोई भी एक मॉलिक्यूल्स, कोई भी रिएक्शन होता है, वो सरफेस में किस तरीके से रिएक्शन होता है, कैसे वो अटैच होता है वो सरफेस में, दैट पार्ट वी विल रीड इन दिस chapter. Okay, so surface chemistry deals with the study. It deals with the study of the reaction occurring in study of the phenomena occurring on the surface, on the what surface, or what interfaces means what? इंटरफेस मीन्स बाउंड्री. सरफेस के ऊपर नहीं तो उसके बाउंड्री के ऊपर जो कंपोजिशन होता है उसके रिगार्डिंग वी विल रीड. ओके, सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फेनोमेनन ऑफ ऑकरिंग ऑन द सरफेस और इंटरफेस. इंटरफेस को यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो, बाउंड्री, नो इश्यूज ऑन दैट, यू हैव टू नो. ठीक है, वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट वी विल रीड. ओके, सो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सम टर्म्स दैट वी नीड टू नो, दैट इज व्हाट? adsorption and absorption. Okay, adsorption and absorption. So what is adsorption? Let's understand the concept. Okay, अच्छे से concept को समझ लो क्या है ये. So absorption पहले समझते हैं. What is absorption? Suppose, is it visible? No. हाँ. Suppose हम एक कॉटन ले रहे हैं. क्या है? कॉटन. कॉटन को we will dip into the water. What we are observing? The water molecules. Suppose यहाँ पे एक मैंने बीकर लिया and बीकर में I have added
कॉटन रुई, यहाँ पे है तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स। जब डिप करते हैं क्या होता है, ये ऑब्जर्व कर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग इनटू द कॉटन, ओके, इनटू द कॉटन। वन मोर एग्जांपल आई गिव, we are eating chai and biscuit, tea and biscuit. When you are dipping the biscuit in the tea, what happens? The tea will broke into that tea. Okay, biscuit will broke into that tea. That means क्या होता है, जब हम खाते हैं वो बिस्कुट टूट के अंदर गिर जाता है, अच्छा लगता है। हाँ, तो वो चीज क्या होता है, देखो वो भी द प्रोसेस इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? एब्जॉर्प्शन क्या है? इट्स ए बल्क फेनोमेना। फर्स्ट थिंग इज इट्स ए बल्क फेनोमेना, मीन्स उसके अंदर तक, बल्क फेनोमेना मीन्स मॉलिक्यूल उसके अंदर जाता है, राइट? टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर को हम पानी में देंगे ऐसे, टिप, एक टिश्यू पेपर एक ऐसा है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट पुटिंग इनटू द वाटर सॉल्वेंट। तो क्या होगा, धीरे 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 पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, पूरा सॉक कर लेगा टिश्यू पेपर। सो दैट इज व्हाट आल्सो द प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द बल्क फेनोमेना, okay, where the water molecules or the solvent molecules get inside that adsorbate or inside the system, okay. Next, adsorption, simple, ये है सरफेस फेनोमेना। ये क्या है? सरफेस फेनोमेना है। ये क्या है? बल्क फेनोमेना था। ये सरफेस फेनोमेना, what will be the things occurring on the surface only, not inside that adsorbate or inside that body. बॉडी के अगर सरफेस में ही अटैच हुआ है, that is what your adsorption. That means the accumulation of what? Accumulation of solute particles, accumulation of the part substance, or you can say accumulation of what? Substance. कहां पे? On the surface, on the surface, not inside or not in outside, on the surface of body is the absorption, ठीक है, इज एडजॉर्प्शन, एडी एडजॉर्प्शन, एबी एब्स एब्जॉर्प्शन, ओके, इज इट क्लियर? सो एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फेनोमेना, एब्जॉर्प्शन इज द बल्क फेनोमेना. यू कैन गिव वन एग्जांपल, ओके, समझ में आ रहा है? सो क्वेश्चन फॉर यू, write or differentiate between adsorption and absorption, okay. You have to write, okay. This is your task, homework. Okay, differentiate between absorption and adsorption. Okay, चलिए अब देखते हैं एडजॉर्प्शन क्या है, किस तरीके से होता है. देखिए, एडजॉर्प्शन लाइक सॉल्यूशन, जैसे कि सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होता है. क्या क्या है वो? सॉल्यूट एक होता है एंड और एक है सॉल्वेंट एक होता है. यहां पे भी ऐसे ही टू पार्ट्स होता है. एडजॉर्बेट, वन पार्ट इज व्हाट? एडजॉर्बेट, another one is what? Adsorbent. ओके, क्या है?
एडजॉर्बेट और एक क्या है, एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब समझते हैं एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है। फॉर द रिमेंबर, टू रिमेंबर यू कैन मेक इट एज, रिमेंबर एज ए सॉल्यूट, ये है तुम्हारा सॉल्वेंट, ऐसे भी याद कर सकते हो, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, सॉल्यूट एक है, सॉल्वेंट एक है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। यहां पे देखो एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक चौक है, क्या है, चौक, ओके, ये क्या है, एक चौक है, ये मैं ले रहा हूं इंक, क्या है, इंक, ठीक है। वंस आई विल डिप chalk into the ink for 1 second, हमें how much time, 1 सेकेंड के लिए इफ आई डिप द चॉक, क्या होगा, चॉक का जो आउटर मोस्ट लेयर, ये जो लेयर है ये पूरा इंक हो जाएगा, इंक कलर हो जाएगा, यस सर नो, यस। देन मैं क्या करूंगा, उसको ब्रेक करूंगा, चॉक को यहां से मैं ब्रेक कर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सरफेस इंक होगा, सरफेस में क्या होगा, इंक होगा, बल्क में क्या होगा, व्हाइट कलर होगा, ये इंक कलर होगा, ठीक है। दो चीज मिल गया हमें। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन, प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एडजॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। सो यहां पे एक है एडजॉर्बेट, वन इज योर एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो नॉर्मली आ जाता है, देखो सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, सॉल्यूट डिजॉल्व होता है कहां पे, सॉल्वेंट में। यहां पे भी वैसे ही सॉल्यूट विल डिजॉल्व और सॉल्यूट जाके चिपकेगा, सॉल्यूट विल अटैच, ठीक है। दैट मीन्स इंक हो गया तुम्हारा सॉल्यूट, और सॉल्यूट मीन्स योर एडजॉर्बेंट। कहां पे चिपक रहा है, चौक में, दिस इज व्हाट योर एडजॉर्बेंट, ठीक है। अच्छे से फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूट और इंक जो है दैट इज अटैच्ड ऑन द चॉक, सरफेस ऑफ द चॉक, एंड चॉक जहां पे वो अटैच हो रहा है वो हो गया तुम्हारा एडजॉर्बेंट, बेंट। वैसे ही सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है कहां पे, बेंट में। इज इट क्लियर? सो टेल मी वन मोर थिंग, यहां पे एडजॉर्बेट कौन होगा, क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बोलना है तुम लोगों को, ठीक है। ये दे दिया मैं बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, एंड ये है तुम्हारा चौक। इफ आई राइट on the blackboard with the help of chalk, now you will tell which is adsorbate and which is adsorbent. This is also surface phenomena, you are writing on the surface only, not inside the bulk. So now you comment me on the comment section that which one is adsorbate and which one is adsorbent, adsorbate and adsorbent, okay. Okay, some process आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, जैसे तुम्हारा एडजॉर्प्शन में भी एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट है, वैसे ही एब्जॉर्प्शन में भी दोनों ही होगा। एब्जॉर्प्शन केस में भी दोनों रहेगा, क्या क्या, एब्जॉर्बेट
and absorbent. Here also two things, adsorbate and adsorbent, right? So if adsorption and absorption both occurs simultaneously, both occurs what? Simultaneously. अगर कोई चीज एक साथ हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस अगर एक साथ हो रहा है, then that is called what? Absorption. That is what known as absorption. If adsorption and absorption taking place simultaneously, then the process is known as absorption. For example, इसका भी example है dyeing of cloths. हम कॉटन क्लॉथ, व्हाइट कलर का क्लॉथ उजाला दे रहे हैं, राइट, डाइंग कर रहे हैं, डाई दे रहे हैं, उसमें कलरिंग एजेंट्स दे रहे हैं. दैट प्रोसेस क्या हो रहा है? वो सरफेस में भी हो रहा है, बल्क में भी हो रहा है. दैट इज व्हाट योर absorption. Okay, understood? So you have to write the difference between adsorption and absorption. Then you have to mention me what is which one is adsorbate and adsorbent in case of blackboard and chalk. Okay, and write the notes part as I have given in your group. And next class we'll read about the mechanism and the types and so many things. Okay, till then, take care, bye bye.